Binormal vector is nothing but the cross product of tangent and the normal. Cross product of unit tangent and unit normal vector. Okay? And these three unit vectors, as T and NT and T and N are the unit vectors, so BT will also be an unit vector. So they will form a system. They will form a three-dimensional system. Okay. तो यहाँ पे T और N वाला प्लेन को कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन, D N प्लेन को नॉर्मल प्लेन एंड T and B को कहते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन. नाउ इस पॉइंट पे they made a system like this. Okay, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर ऐसा है, नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two, and this will follow the thumb rule of vector multiplication to determine the direction of the binormal vector. See, if you place your thumb here and you are multiplying here to here, so your direction will be in the upward direction. Those who have physics in +2, they know this thumb rule. Okay, thumb rule of vector addition, vector multiplication और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट अगर चेंज होता जाएगा, ये कर्व है हमारा, दिस इज योर आरटी. नाउ इफ यू मूव फर्दर इन दिस कर्व, तो देयर यहाँ पे जो होगा टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल यहाँ पे होगा, बाइनॉर्मल ऊपर कहीं किस साइड होगा, तो यहाँ पे फिर से एक सिस्टम बन जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाला. ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिस्टम होगा ये चेंज होता रहेगा एज यू मूव फॉरवर्ड थ्रू द कर्व. ओके, अलोंग द कर्व, move further along the curve. And if you follow this, basically what T cross N, that will give you B, N cross B, that will give you T, and B cross T, that will give you N. Okay, so this thing is called TNB frame, or sometimes called Frene frame. तो अगर ये कभी आपका उस पे आ गया, origin पे आ गया, तो it will merge with our XYZ plane. See how this B and T, they are changing as we move along the curve. And this is basically the formula if you substitute the expressions for T and N. T और N का जो पहले हमने expression देखा था in terms of RT and RS, if you substitute them, then this will be the formula. Okay. Okay, sir. चलो record start. So today we'll study curvature. Now definition of curvature. Curvature के बाद से ही हमें पता लग रहा है the amount of curvedness. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इस चीज को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? We can relate the bentness. हम आपने पहले भी एक बार इस चीज को लेके स्टडी किया था इन यूनिट 1, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली we'll see the direction of the tangent. We'll observe the direction of the tangent at each and every point of the curve. Okay, so ये क्या कह रहा है, is closely related to dt ds. तो इसको हम किस चीज के रेस्पेक्ट में, t है हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू t. तो इसको क्या कह रहे हैं, दिस लाइन इज रियली इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द रेट ऑफ चेंज of unit tangent vector capital T with respect to S. Rate of change of unit tangent vector T with respect to small s. Small s is what? Small s जो है आपका arc length. Small s is arc length. ठीक है, तो with respect to arc length, not with respect to T. ठीक है,
तो the sharpness or the bend in C is called the curve, is closely related to DTDS. Okay. So what is it saying? That T has a constant length, so only its direction changes. T has a constant length, only its direction changes. Okay. Now, if C is a straight line, then the curvature, that curvature of circle is constant. That means at every point, the curvature of circle will be constant. Now, this curvature is denoted by Greek alphabet kappa. Greek alphabet kappa. Okay. ये के की तरह दिखता है, बट थोड़ा सा कर्ली है ये. Now they have discussed about the situation in 3 dimension. Okay, situation is 3. Then we need to we need to play with this TNB frame. Okay, normal and binormal. इन तीनों को लेके हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा. Basically, we need to check this rate of change of this tangent rate from with respect to the earth. तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो दे हैव गिवन ए रफ आइडिया. तो हमें सिर्फ 2 डायमेंशन में देखना है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन 3 डायमेंशन. ओके. नाउ द डेफिनेशन. Definition is important. If C is a smooth curve in 2 dimensional, 3 dimensional space that is parameterized by arc length, then the curvature of C is denoted by kappa. Okay, it's defined by this norm of DTDS. Now, if you substitute in terms of R में ले जाना चाहते हो, this will be R double prime of S. This is also important. This is a real valued function of S, as you can see from the given expression. This is the norm. Okay. अगर डिफरेंशिएट करने के बाद भी S का कुछ बचता है, तो अगर कांस्टेंट होता है तो दैट विल गिव यू सिंपल स्केलर नंबर. ओके. Now the curvature will vary from point to point along a curve. Okay, now this is the equation of a circle. Okay, so this is the equation. Circle का normal parametric equation क्या होता था in terms of t? A cos t, a sin t. तो सिंपली आप, तो ये रेडियस ए है, तो एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या होगा, एस इक्वल टू 80, तो टी आपका हो जाएगा एस बाई ए. तो वही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. एंड टी लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो एस विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई ए. तो इसका अगर हमें कर्वेचर निकालना हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? आर एच इज इसको डिफरेंशिएट करो 2 बार. टेल मी, एंड यू नीड टू टेक द नॉर्म. ओके, गो अहेड, डू इट. क्या होगा ये, बताओ जी. आर प्राइम एस क्या होगा? So minus sin s upon में आई plus cos s upon में aj. माइनस साइन एस अपॉन ए आई. ये कैसा तरीका है बताने का? सर मतलब s upon में है, फिर आगे i क्या. हाँ, ठीक है. और
ये हो जाएगा आपका cos upon a। सर कर्वेचर 1/a आ रहा है। Yes, my dear, curvature is coming 1 upon a. The norm of this part will be root over, तो 1/a² बाहर और अंदर आपका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा। तो दिस पार्ट विल बी 1 and 1/, तो ये क्या है बेसिकली 1/, रेडियस। ओके, so this is the curvature of a circle। Okay, now see straight line. This is the equation of a straight line. As expected that curvature of a straight line must be 0 because the bentness is not there। Okay, so straight line का curvature जो है आपका 0। Now here are some other expressions of formula for curvature। These formulas we are going to need it in different questions। Okay, as the questions come, क्योंकि कई बार क्या हो जाएगा कि आपका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा आर्क लेंथ पैरामीटराइज करने में थोड़ा सा मेहनत लग जाए, तो तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच इज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। Okay, these are the two formulas। So R is a smooth vector valued function in 2 or 3 dimensional space। Then for each value of t at which t prime t and r double prime t exist, the curvature kappa can be expressed as norm of t prime t divided by norm of r prime t। तो ये कर्वेचर का आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका क्या था, कप्पा एस था। तो यहाँ पे हमने जस्ट मैनिपुलेट किया, दिस फॉर्मूला ऊपर नीचे हमने dt से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचे, हाउ द डिनोमिनेटर चेंजेस, इसका एक हमने थ्योरम देखा था लास्ट में, है ना, ये वाला याद है ना, GSDT इज नॉर्म ऑफ DRDT। 12.4 में बेसिकली, 12.3 में, if we are doing 12.5 I guess, नहीं 12, हाँ 12.5 कर रहे हैं। नाउ t का फॉर्मूला ये था हमारा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर r प्राइम t norm of r prime t। So from there we write down this expression and after that इसको फिर से डेरिवेटिव किया, यहाँ पे यूवी रूल लगाया, ठीक है। So from there what they did एक मिनट, इस प्रूफ को हम यहाँ पे करते हैं एक बार। We need to show that okay। So
From here, differentiating with respect to t, you will get norm of ओके। ये विल लगा यहाँ पे। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन r prime t and r double prime। तो आर टी के जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और आर डबल प्राइम टी की जगह पे ये एक्सप्रेशन। तो दिस विल बिकम क्रॉस ओके। तो यहाँ पे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैन यू टेल मी? ये स्टेप समझ में आया सबको? हाउ वी आर मूविंग फर्दर? क्रॉस प्रोडक्ट विद द फर्स्ट टर्म, क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेकंड टर्म। ओके। तो फर्स्ट टर्म में तो देखो यहाँ पे t और t में तो ये हमेशा क्या होगा, ये जीरो होगा। एक वेक्टर को इटसेल्फ से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दैट विल ऑलवेज गिव यू जीरो बिकॉज देयर इज ए साइन टर्म इन्वॉल्व। तो एंगल बिटवीन दीज टू मस्ट बी जीरो। तो दिस साइन फर्स्ट, जीरो। हाँ तो ये वाला पूरा पार्ट जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो रहेगा क्या, सिर्फ ये रहेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म ऑफ डबल प्राइम। ये एज इट इज रहेगा, इसका नॉर्म आएगा।
तो एक चीज बताओ, ये क्या है आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो ये क्या होगा, दिस पार्ट विच इज ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू टी, है ना? इससे सहमत हो सब लोग, Yes, sir. है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट इट डाउन, उसको व्हाट विल बी द, इस इंफॉर्मेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो, एनी आइडिया? नॉर्मल बनेगा सर ये? क्या बनेगा, इसको हम लोग सिर्फ नॉर्म ऑफ ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको ये, सर दोनों के इंडिविजुअल नॉर्म का प्रोडक्ट। हाँ 90 तो होगी यार चंदर है ना तू, तेरा आवाज ना आज बहुत कट रहा है। नॉर्म साइन पाई बाई टू, है ना? तो ये हमारा तो वन होगा और ये भी हमारा वन होगा। यू आर लेफ्ट विथ दिस। तो इस चीज को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, इसको हम इक्वेशन वन नाम देते हैं, ये क्या आएगा, तो ये देखो टी जो है ये आप हमारा यूनिट वेक्टर है, तो नॉर्म ऑफ दिस विल बी वन, इसीलिए, और साइन 90 तो वन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ठीक। फ्रॉम हियर, अब लास्ट स्टेप तुम लोग बताओ। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप? हमें प्रूफ क्या करना था, भूल गया क्या वो? व्हाट यू नीड टू शो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कप्पा। अब क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला था, दिस पार्ट कप्पा टी इज नॉर्म ऑफ टी प्राइम डिवाइडेड बाय आर प्राइम, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो न्यूमरेटर की वैल्यू को, जो हमें यहाँ पे मिला, तो कप्पा विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस विल गिव यू नॉन आर प्राइम टी क्रॉस आर डबल प्राइम टी डिवाइडेड बाय आर प्राइम टी का होल। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है।
ये समझ में आया सबको दोस्तों? यू अंडरस्टैंड दिस प्रूफ और नॉट? Yes, हाँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्या बोल रहा है तू? सही बार रिपीट कर दो इसे। ये थ्योरम हमें प्रूव करना है 12.5.2। If RT is a smooth vector valued function in two or three dimensional space, then for each value of t at which t prime, capital T prime, and r double prime exist, okay, the curvature kappa can be expressed as norm of t prime divided by norm of r prime, and second result is cross product norm of the cross product of r prime and r double prime divided by norm of r prime t का होल क्यूब। नाउ फर्स्ट पार्ट इज इजी। अच्छा, ये तो ध्यान है ना आप लोगों को, सेक्शन 12.3 दैट मीन्स आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला था थ्योरम में, ये रहा। ओके, दिस फॉर्मूला दे हैव यूज्ड। तो दे प्रूव दिस वेरी इजीली। ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट दे आर dividing both numerator and denominator by dt, and use that formula 16 from section 12.3, and they reached the, they proved the first result. Now about the second one, what you have done, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यूनिट टेंजेंट का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आर टी, वी हैव यूज्ड दैट। तो आर प्राइम टी जो होगा नॉर्म ऑफ आर प्राइम टी इनटू टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसको हमने बोथ साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया यूवी रूल अप्लाई करके। तो दिस, ये हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी आर प्राइम टी एंड आर डबल प्राइम टी के बीच में। ठीक है, and we have used these two expression. If let's say this is A and this is B, we have used these two expression for finding out the cross product between R prime T and R double prime T. So after a little bit manipulation, इसको हमने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया और इसको हमने फिर से इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो एडिशन बीच में आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये तो आपका नॉर्म है, हमारा वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वेक्टर आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ विल ऑलवेज बी जीरो। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया हमारा जीरो हो गया, वी आर लेफ्ट विथ यूनिट टेंजेंट क्रॉस टी प्राइम टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो दोनों है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यूनिट टेंजेंट एंड उसका डेरिवेटिव। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस दे आर ऑर्थोगोनल। So if you use the formula for cross product here, तो यहाँ पे हमें सॉरी पहले हमें नॉर्म निकालना है। सो आफ्टर फाइंडिंग आउट द नॉर्म, इसका नॉर्म आएगा, तो हमने इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ऑर्थो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। फ्रॉम देयर वी हैव रीच्ड दैट norm of the unit tangent and the first derivative of the unit tangent, cross product of those two will give you this part. Okay, so we have substitute this in 1 and we get this, after that this, and you substitute this in the first result, इसको one line proof था and we reached this. Okay,
Okay, find the curvature of the curve RT 2T T square minus TT। इसका कर्वेचर निकालो। चलो, जो फॉर्मूला आप लोगों ने अभी सीखे, now tell me what will be the curvature। फॉर्मूला क्या है कर्वेचर का? दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। ये और आपका ये, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। हो रहा है ये, क्या करूं मैं? हो जानी चाहिए यार। कौन बताएगा? आशुतोष बताओ। आशुतोष, आर यू देयर? अच्छा, बबीता, बबीता काम आप हो गए क्या? चंदन तू ही बता दे, चल। ठीक है आशुतोष, फिर रिमूव कर दूं मैं तुम्हें? बबीता, आर यू देयर? शुड आई रिमूव यू एज वेल? बबीता, ओके रिमूव। चंदर, सर फिर बोल के क्या फायदा। क्या 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 कह रहे दोस्त? ये बोल रहा हूँ वॉइस तो मेरी क्लियर पहुंचनी नहीं है, फिर हाँ बेकार में हाँ, ट्राई क्यों करूं।
नहीं नहीं, अभी पहुंच रही है, अभी पहुंच रही है, अभी पहुंच रही है। बता इसको, हाउ टू अप्रोच इट। सर टेंजेंट वेक्टर तो ये यूनिट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1 होना चाहिए इसका नॉर्म। किसका नॉर्म? ये टेंजेंट इसका, वाले का 1 नहीं आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ये टेंजेंट थोड़ी है ये प्राइम है ना यहाँ पे, है ना? तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर प्राइम टी निकालना पड़ेगा। और आपको सब क्या मेरा निकाल, आ रहा है 1/2 डिवाइड में है √1 + t² आ रहा है। 1/, 2 डिवाइड में 1/2। नीचे 2 आएगा। सर 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई में इसी के आएगा √1 + t²। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई 1 + t²। अच्छा पता नहीं, आप देख लेना सर ये। हाँ ठीक है ठीक है, देखो और किसी का कुछ आ रहा है। देखो एक दो को रिमूव किया ना, फिर आप लोग वो हो गए, बात करने लग गए। ठीक है, सर 2/2 + t² का होल स्क्वायर। 2/2 + t² टू का होल। प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है। सर 2/t² + 2 का होल स्क्वायर ऊपर √/t² + 1। ऊपर √ओवर। t² + 1। क्या बात है, और कोई? चलो एक इसको फटाफट कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो आर प्राइम टी क्या होगा आपका, 2 2t - t²। ठीक है, तो इसका नॉर्म क्या होगा, नॉर्म होगा √4 + 4t² + t⁴। तो ये आपका हो जाएगा 2 + t² का होल स्क्वायर, तो ये 2 + t² आएगा। तो आपका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है आर प्राइम टी डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ आर प्राइम टी, है ना? तो ये आपका आएगा 2/2 + t² 2t/2 + t² एंड -t²/2 + t²। ठीक है, तो टी प्राइम निकाल लेते हैं हम। दिस विल बिकम टी प्राइम जो होगा 1/2 + t² का होल स्क्वायर, और विदिन ब्रैकेट में होगा आपका, विदिन ब्रैकेट क्या होगा बताओ, कोई एक बताओ जिसने ये वाला। 40 40, 40 होगा, -40 है। -40 होगा, हाँ -40। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 - 2t²। 4 - 2t², लास्ट वन इज ऑल्सो -40। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ, नीचे का नॉर्म ऑफ, ये आपका हो जाएगा √16t² 16 + 4t⁴। अच्छा मेरे को बताना, हाँ अगर मैं गलत करूँ तो। आर यू गाइस फॉलोइंग? ठीक है, चलिए जाएगा। तो ये क्या होगा,
what will be this? This will become 2 plus t square. तो कप्पा क्या होगा ये हमारा? नीचे 2 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट में नहीं होगा? अंडर रूट में क्या होगा दोस्त? कैसे होगा? ये होल स्क्वायर बाहर अंडर रूट के बाहर लेके आएंगे तो 2 प्लस टी स्क्वायर नहीं होगा खाली? हाँ, होल स्क्वायर को बाहर ही तो निकाल लाया, तभी तो हुआ ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर बाहर ही है। ओके सर। डिनोमिनेटर जो है दैट इज आउटसाइड। कप्पा क्या हो जाएगा हमारा? तो दिस इज व्हाट आर प्राइम की कहाँ है? नॉर्म ऑफ 2 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक किसी ने ये आंसर दिया था, राइट? someone gave this answer, so this is the correct one. तो इसको आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर ला। ये गाइस प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स, ओके? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ठीक होगा, वरना उल्टा सीधा आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से भी करना है, देखने की कोशिश करना कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्वेचर ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स का इक्वेशन क्या होगा? ANCR ग्रेटर देन C। इसके कर्वेचर निकालो फटाफट, ये आसान होगा। इसका ना कर्वेचर इस वाले फॉर्मूला से निकालो। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सर a अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ रहा है। ए अपॉन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। व्हाट्स योर नेम डियर? सर शिवानी। यस माय फ्रेंड। सर 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ रहा है। 1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज आंसर ए, दिस इज आंसर बी। ठीक, देखते ए साइन टी, ए अरे ए कॉस टी, सी ए कॉस टी माइनस ए साइन टी 0। ये डिटर्मिनेंट है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका ए सी साइन टी आई माइनस ए सी कॉस टी जे प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है ये शिवानी, इज इट लाइक करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो इसका नॉर्म निकालना है। मुझे बताना, क्योंकि मैं आई डोंट प्रैक्टिस, तो मैं बहुत ज्यादा गलती कर देता हूँ कैलकुलेशन में। रूट ओवर तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तो ये बेसिकली आफ्टर मैनिपुलेशन दिस विल बी कमिंग एज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? ठीक है ये। सर ए स्क्वायर बाहर भी होगा शायद, मतलब ए बाहर आएगा। सर हाँ ए हाँ, बाहर आएगा, फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ आर प्राइम की देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा आर प्राइम की कहाँ है, ए स्क्वायर ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कप्पा क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, सर इसमें कप्पा वाला वो पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? हाँ वो भी लगेगा, वो वाले फॉर्मूला से हमने कर लिया ना एक प्रॉब्लम वाला, दूसरे वाले फॉर्मूला से करा। दोनों फॉर्मूला लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? ठीक है, अरे एक चीज है ना, 1/a निकाला था ना हमने, यस सर। और हेलिक्स का इक्वेशन क्या है, ए कॉस टी एन सी टी, ये हमारा हेलिक्स का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारा, ओनली ए कॉस टी एंड ए साइन टी। तो सी को अगर 0 कर दे, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइड सर्कल है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/a में, राइट?
यस सर। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो हेलिक्स का भी जो कर्वेचर है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, अब देखते हैं। और इसका देखते हैं। सर अब हमारी दूसरी क्लास ओके ओके, ओहो, सो सॉरी, सो सॉरी। ओके ओके ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।